Okay. Yes, अमित, मीर, ऋतुराज, आप में से कोई बताएगा? यस सर, फाइल सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। स्लैश बिन, रूट, डेव, ईटीसी, वो सब लिनक्स के मेन फाइल सिस्टम्स हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। लिनक्स में फाइल सिस्टम अलग अलग होते हैं, बट स्लैश बिन और ये these are not file system, these are folders. So root is the main directory under the file system. So उसको हम as a root file system बोलेंगे. Root file system is not actually the right word, but it's a root. So in order to understand, in order to make you understand, we can say कि ये जो root है ना, वो file system का part है. It's a file system part, or it's a main file system. So Linux के जो file systems हैं, those are like XFS, ext4, ButterFS, ZFX. So those are the file systems. But yeah, those are different file systems, but it's not related to like कि हर एक किसी भी file system में root तो रहेगा ही रहेगा. So आप कोई भी file system choose कर, like in Windows, we have different file systems as FAT32, NTFS. तो ये जो दो file system types हैं Windows के अंदर. So similarly, there are certain file system types in Linux as well. But even Windows में आपने FAT32 किया हो या NTFS किया हो, you would still see the C drive. Okay. So in any file system, root would be root for the purpose of slash. For the as long as we are storing the data, then it's going to be something which is storing our data and considering as a primary volume. Okay, guys. Yeah, so slash is your Linux file system, or you can say that it's a root file system in order to understand it better, because slash के अंदर slash root भी रहता है. So slash और slash root में क्या difference है, कोई बताएगा? धनराज. धनराज, प्रथम, दिग्विजय, अमित. Yes, sir. Yes. Slash is from where the whole Linux file system is started, and Yes. slash root means only the root file system is started. No, this is not the case. कोई और बताएगा? Can anyone else try? सर रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है स्लैश रूट. Yes, slash root is the root user home directory. Okay, please make it clear कि हर एक यूजर का खुद का एक प्रोफाइल रहता है. तो उन प्रोफाइल में से जो रूट यूजर है, उस रूट यूजर का जो प्रोफाइल है वो स्लैश रूट में रहता है. अच्छा, अगर हम नॉर्मल कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो उसका प्रोफाइल कहाँ पे होगा? होम डायरेक्टरी में. वो स्लैश होम के अंदर रहेगा. That's correct. Okay. Okay, so let's now discuss a little bit about further into the Linux more commands. And कल हमने absolute path और relative path discuss किया था. So absolute path is basically the path which starts from its origin. Okay, is that clear to every one of you? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So when we say absolute path starts from its origin, origin कौन सा है Linux के अंदर? What is the origin in Linux? Slash. Origin is slash. Slash से पहले कुछ भी नहीं है. So origin is slash.
So if we talk about Windows, the origin is C drive. Okay. But Windows is completely different in terms of managing all this. But Linux is completely different in terms of all these things. Even अगर आपने कोई अलग पार्टीशन क्रिएट किया है ना, तो वो भी अगर जो क्रिएट होगा ना, मतलब उसका जो एक्सेस पॉइंट या माउंट पॉइंट होगा ना, वो भी स्लैश के अंदर ही रहेगा. So slash is going to be something which is very critical. So any path which starts from slash would always be absolute path. Any path which is accessed from its current directory would be the would be a relative path. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया किसी को? Any path which is accessed from the current directory would be your relative path. Okay, मतलब आप किसी करंट डायरेक्टरी के अंदर हो, तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी करंट डायरेक्टरी में हो, वहां से अगर आप कोई भी पाथ एक्सेस कर रहे हो, तो दैट वुड बी योर रिलेटिव पाथ. ओके, अदरवाइज एनी पाथ और एब्सोल्यूट पाथ ना आप किसी भी पाथ पे रह के ऑलवेज एक्सेस कर सकते हो, बट रिलेटिव पाथ हमेशा उसी लोकेशन से एक्सेस होगा जहां पे उसका पेरेंट पाथ है. तो पेरेंट पाथ पे आपको पहले जाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एक्सेस द रिलेटिव पाथ. ओके, समझ में आया गाइस? Yes, sir. Okay. So let's now see some of the examples or how we can work on this particular path. So let me share you my screen. Okay, screen visible है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी अगर मैं पूछूं कि मैं कौन से पाथ पे हूँ, तो what is the answer? Slash root. Slash root. Slash root. Okay, why? Because we are already logged in with root user and we can always run the pwd command to see the path. So right now I'm into slash root partition. तो अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी folders दिख रहे हैं, okay, तो these are the relative path of this slash root. समझ में आया guys? So all these folders or files that we see are the relative path of this slash root. तो इनमें से मान लो कि मुझे ये डाउनलोड्स फोल्डर अगर एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे जो कमांड रन करूंगा दैट वुड बी cd एंड मैंने सिंपली फोल्डर का नाम लिखा है. So when I write the folder name without putting slash in front, so this becomes as a absolute, this becomes as a relative path. And this path can only be accessed when I am into the root. Okay, make sense? समझ में आया guys? Yes, sir. Okay, so slash root पे रह के अगर मैं downloads folder को access कर रहा हूँ, तो I would be able to do that because it's related to slash root. बट किसी और पाथ पे जाके अगर ये डाउनलोड्स का फोल्डर एक्सेस करूंगा, तो ये एक्सेस नहीं होगा. बट अगर इसको मुझे फिर भी एक्सेस करना है, किसी दूसरे पाथ पे रह के भी मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इन दैट केस मुझे ना इसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ लिखना पड़ेगा. So you can access this downloads folder only when you can write cd downloads. This will work only when you are into root. Okay, समझ में आया?
Yes, sir. ओके सो सीडीज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, सो आई एम करंटली इनटू स्लैश रूट. ओके सो लेट्स नाउ लर्न अबाउट द very good and the known command, which is cd. cd means change directory. Okay, cd command का जो meaning है, that is to change the directory. And what does this actually mean is कि अगर आप एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर के अंदर स्विच करना चाहते हो, तो फॉर दैट वी यूज cd command. cd command means change directory. ओके सो किसी भी फोल्डर को एक फोल्डर से कमांड लाइन पे अगर आपको फोल्डर स्विच करना है तो वी विल यूज cd कमांड. सो cd डेस्कटॉप करूंगा तो ये क्या करेगा, ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर एक्सेस करेगा, चेंज डायरेक्टरी. सो कमांड इज चेंज डायरेक्टरी, तो ये फाइल पे कमांड नहीं चलेगा कभी भी. ओके क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं. सो cd डेस्कटॉप किया तो डेस्कटॉप के अंदर आ गया. ओके क्लियर. अच्छा, आप किसी भी पाथ पे हो, यू कैन ऑलवेज एक्सेस एब्सोल्यूट पाथ विदाउट एनी इश्यूज. ओके आप चाहे कोई भी पाथ पे हो, चाहे 10 लेवल अंदर आप किसी भी फोल्डर के अंदर आके एक्सेस करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एब्सोल्यूट पाथ जो है ना, वो कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. आपके करंट पाथ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. दैट इज वाई करंट पाथ का इफेक्ट मतलब करंट पाथ कब पिक्चर में आता है, व्हेन यू आर यूजिंग रिलेटिव पाथ. ओके व्हेन you are using relative path, then your current folder matters. Okay but absolute path के लिए current folder does not matter at all. So अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ c / etc, तो here I don't need to see कि मेरा current directory क्या है, because अभी मैं कौन सा folder access कर रहा हूँ, etc folder access कर रहा हूँ, but उसका पूरा path access कर रहा हूँ. Even cd etc sshd या मतलब जो भी मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा तो everything would be accessible. Why it is accessible? Because I am defining absolute path. Okay but यहाँ से अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, कोई समझाएगा? Sir, by writing this, you are specifying that etc directory is present in current working directory, but it is not there, so it will throw an error. ओके वेरी मच राइट. ओके समझ में आया गाइस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ से स्लैश हटा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी मैं हूँ अभी, राइट नाउ आई एम इनटू द डेस्कटॉप डायरेक्टरी. तो ये क्या करेगा, cd etc, आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो it will look for this etc folder in desktop, because that's what I am saying to the command कि ये ना मैंने absolute path नहीं लिखा है, relative path लिखा है. तो relative path, one thing is this is relative path. The second thing is when we write the relative path, it will always be in relation with the current directory. ओके अगर वो करंट डायरेक्टरी के रिलेशन में नहीं है तो यू विल गेट एन एरर. इफ इट्स इन रिलेशन विथ करंट डायरेक्टरी देन इट विल स्विच द पाथ. ओके गाइस क्लियर? गर्ल्स जाग जाओ प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. सो नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है लिनक्स में जागने की. Okay, so when we write cd / etc / ssh, so what it is trying to identify is कि डेस्कटॉप पे जो etc नाम का फोल्डर है ना उसमें स्विच करो. बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस. हमें कहाँ पे एक्सेस करवाना है, स्लैश पे एक्सेस करवाना है. तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा तो वन थिंग इज दिस इज एब्सोल्यूट पाथ, बिकॉज दिस पाथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्लैश. So any path which is starting from slash would always be a
would always be a absolute path. Okay. जब आप cd कमांड के अंदर सबसे पहले अगर स्लैश लिखते हो ना, तो it is going to see in the slash directory. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so cd/etc/ssh करूंगा तो एंटर जैसे ही करूंगा तो ये इसने फोल्डर स्विच कर लिया. ओके, क्लियर? सो अब जब भी आपने फोल्डर एक्सेस किया तो एक चीज जो कल हमने देखी थी वो ये था कि जो रूट फाइल सिस्टम है या जो फाइल सिस्टम है, इट्स अ root tree hierarchy system. Okay, so when we say it's a root tree hierarchy system or it's a hierarchy system, so in the hierarchy system what happens is okay, there would be someone के उसके जो है ना वो I mean in this root tree hierarchy system there would be some parent and there would be some child. Okay, so ये जो है ना वो /etc is a parent folder for SSH. So SSH is a child folder for etc. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, etc का पेरेंट फोल्डर कौन है? Yes, anyone? Neil, Slash. Arshil. Yes. So slash is one of the folder and it means it's a Linux file system folder. Main folder है Linux का. Okay. तो slash is your main folder. मतलब पूरे Linux का जो है ना वो जो माई बाप है वो स्लैश फोल्डर है. ओके, पूरा लिनक्स इस पे इंस्टॉल्ड है, स्लैश फोल्डर पे इंस्टॉल्ड है. तो हर एक फोल्डर का जो हर एक मतलब पूरे जितनी भी लिनक्स का पूरा लिनक्स अगर हमारा चल रहा है तो हर एक का जो टॉप पेरेंट है, मतलब सबसे सबसे टॉप पे जो है वो कौन है? स्लैश है. स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर स्लैश. ओके, so when we say etc, so etc is a child folder of slash, and there are many other folders which are child folder to slash, like /bin, /boot. So these are all the child folder of slash. Okay, but SSH का parent folder कौन है? exe. So SSH का parent folder is etc. Okay, clear? अच्छा, जब भी हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, सो देर विल ऑलवेज बी 2 डायरेक्टरीज. सो इवन अगर मैं कमांड रन करता हूँ ना, एंड दोज 2 ब्लैंक डायरेक्टरीज, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls-l is ll, so we can write it not d but a. तो देखो, जब भी कोई भी फोल्डर आप क्रिएट करोगे ना, तो these 2 डायरेक्टरीज विल ऑलवेज एग्जिस्ट. और ये 2 डायरेक्टरीज क्या हैं? वन इज डॉट एंड द अदर वन इज डॉट डॉट. ओके, तो ये ऑलवेज 2 डायरेक्टरीज रहती हैं जब भी आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करोगे. वन थिंग इज दीज आर डॉट एंड डबल डॉट. सो एनी फाइल और फोल्डर which starts with dot would always be a hidden file or folder. सो अगर हम नॉर्मल लिस्टिंग कर रहे हैं ना, जैसे मैंने लॉन्ग लिस्टिंग किया, तो देखो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट अगर मुझे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने हैं तो हाइफन ए ऑप्शन यूज करना रहेगा. विथ हाइफन ए ऑप्शन इट विल शो यू एवरीथिंग. ओके, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स और फोल्डर्स. सो ls हाइफन la किया तो हमें क्या दिखा रहा है? हिडन फाइल्स भी दिखा रहा है, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी दिखा रहा है. तो हर एक फोल्डर के अंदर ना आपको ये 2 डायरेक्टरीज दिखेंगी. दिस वुड बी डॉट एंड डबल डॉट. ओके,
So, guys who have already learned the Linux in my previous batches, can anyone let me know what is the meaning of dot and double dot? If you still remember it. Yes, anyone? और सर जो डॉट है ना वो करंट डायरेक्टरी के लिए है Mm-hmm. और जो Okay. डॉट डॉट है ना वो सर प्रीवियस डायरेक्टरी के लिए। Okay. So, yes, you're right, Amit. So, this dot represent current directory. So, अगर मुझे current directory को represent करना है ना Linux के अंदर, कहीं पे मुझे ऐसा path देना है कि ये ना current directory पे ही चीजें रखो, तो I can simply type dot. तो Linux क्या समझेगा कि ओके मुझे ना करंट डायरेक्टरी पे ही कुछ काम करना है। अगर मैं डबल डॉट लिखता हूं तो दैट डिफाइंस कि ओके मुझे ना मेरी मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसके एक स्टेप पीछे जाना है या उसकी मुझे एक स्टेप प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है। तो दैट मीन्स कि एक स्टेप प्रीवियस डायरेक्टरी बेसिकली दिस इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, बट द राइट टर्मिनोलॉजी इज के मुझे जिस करंट डायरेक्टरी में हूं उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। फॉर एग्जांपल if I show it to you here, तो अभी मेरा कौन सा पाथ है /etc /etc/ssh लिखा है। ओके, तो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली कि अगर मैं cd डबल डॉट लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? cd स्पेस डबल डॉट अगर लिखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, क्या मीनिंग होगा? It will Yes. jump to parent directory. Okay, it will jump to the parent directory. So parent directory of SSH, parent directory of current directory is /etc. Okay, समझ में आया guys? So when I define cd double dot, so what it will do is कि ये एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब इसकी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाएगा, इसकी नॉट प्रीवियस बल्कि इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इसकी एक स्टेप पीछे जाएगा एंड इसकी प्रीवियस डायरेक्टरी में जाएगा और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाएगा। सो व्हेन आई टाइप cd डॉट डॉट इट हैज नाउ मूव टू /etc बिकॉज वी हैव डिफाइंड कि ssh की पेरेंट डायरेक्टरी में जाओ एंड ssh की पेरेंट डायरेक्टरी क्या थी /etc। अब यहाँ पे अगर cd डॉट डॉट करूंगा तो क्या होगा? सर स्लैश फोल्डर में आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा? स्लैश फोल्डर में जाएगा बिकॉज etc का जो पेरेंट फोल्डर है वो कौन है? स्लैश। अब यहाँ पे अगर cd डॉट डॉट करूंगा तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा सर, हम वहीं पे रहेंगे। यस, इट विल डू नथिंग बिकॉज स्लैश का कोई पेरेंट फोल्डर नहीं है। सो स्लैश इज, बट ये कमांड फेल भी नहीं होगा बिकॉज आप कितनी बार भी रन करोगे ये फेल नहीं होगा बिकॉज इसका इसके इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका आगे मतलब यहाँ से जा रहा हूँ वो आगे ही सारी दुनिया है लिनक्स की, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, सो स्लैश के पीछे आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी है वो स्लैश से आगे ही है। सो यहाँ से अगर हम कोई भी पाथ एक्सेस करेंगे, सो इफ आई डू द लिस्टिंग हियर, सो नाउ इफ आई टाइप cd मीडिया, तो ये जो पाथ लिखा है वो कौन सा पाथ लिखा है मैंने? वन थिंग इज कि ये कौन सा पाथ लिखा है मैंने? Relative path. So this is a relative path. And would it work or not? Yes, sir. It will work. ये work करेगा. Why it will work? Because I am already into / and when I do the listing,
तो मुझे मीडिया नाम का फोल्डर दिख रहा है डायरेक्टरी के अंदर। ओके, और तो ये डायरेक्टरी में जब मीडिया फोल्डर दिख रहा है तो मैं cd मीडिया करूंगा तो सिंपली स्विच हो जाएगा। ओके, क्लियर? समझ में आया गाइस? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, तो sir. cd मीडिया किया तो ये मीडिया फोल्डर में स्विच कर लिया। तो यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई फोल्डर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर मैं cd करके कोई भी फोल्डर लिखूंगा तो वुड इट वर्क और नॉट? यस सर, इट विल वर्क। अच्छा, कौन सा पाथ वर्क करेगा यहाँ से अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ? सर एब्सोल्यूट डालना पड़ेगा सर, स्लैश करके। यस, ये पाथ से जो भी अगर मुझे कोई पाथ एक्सेस करना है तो एब्सोल्यूट पाथ वर्क करेगा, बट रिलेटिव पाथ कोई भी वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ www/html, तो ये वर्क करेगा? नो सर, ये वर्क नहीं करेगा सर। ये सिंपली Slash अगर ऐसा लिखता हूँ cd www तो ये पाथ वर्क करेगा? यस, नो, या फिर एक और आंसर होता है डोंट नो। नो सर, ये वर्क नहीं करेगा सर। So this will not work because this www is not under media. Okay. I hope it's clear to all of you. Right? Yes, sir. So when I type cd dot dot, it means change to the parent directory. Okay. So wherever अब आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी किसी भी पाथ पे हो, and when you type cd, so what it will do is it will switch to the home directory up. So I am अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज आप लोग को लिखना हो तो प्लीज लिख लीजिएगा। आप किसी भी पाथ पे हो, फॉर एग्जांपल /etc/ssh, ठीक है, आप ये फोल्डर में हो, सो वेर एवर यू आर एंड यू सिंपली राइट अ cd कमांड, तो अगर आपने cd कमांड रन किया तो what it will do is कि it will move you to the home directory of the login user। ठीक है, आपको होम डायरेक्टरी में स्विच कर देगा। सिंपली cd कमांड लिखोगे ना तो क्या होगा, यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। अब जिस यूजर से भी लॉगिन हो उस यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। अगर आप रूट से लॉगिन हो तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अगर आप बीशम यूजर से लॉगिन हो तो बीशम यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अगर आप मान लो कि हितवी यूजर से लॉगिन हो तो हितवी यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अगर आप अमित यूजर से लॉगिन हो तो अमित यूजर की होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। सो वेयर विच एवर यूजर यू आर लॉगिन और वेर एवर यू आर, सिंपली अगर आप cd कमांड रन करोगे ना तो क्या होगा कि आपको यूजर की होम डायरेक्टरी में लेके आएगा। तो जैसे ही मैंने cd लिखा तो यहाँ पे ना, यहाँ पे पाथ जो है ना वो चेंज होके यहाँ पे एक साइन दिखा रहा है, एक सिंबल दिखा रहा है, and this symbol is basically called as a tilde sign. So this is a tilde sign. Okay. So on keyboard, it's on a QWERTY keyboard, it's before 1. 1 जो न्यूमेरिक लेटर होता है ना, उससे पहले का एक की जो ऊपर की साइड पे रहता है, that is tilde sign. So this tilde sign basically represent इस टिल्ड साइन का जो मीनिंग होता है, सो दिस टिल्ड साइन हैज अ मीनिंग लाइक, जैसे डॉट का मीनिंग क्या है, डॉट रिप्रेजेंट करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी, टिल्ड साइन रिप्रेजेंट होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। अच्छा, होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर, बट कौन सा यूजर, हु इज लॉग इन, लॉग इन। currently login. Okay,
तो टिल्ड साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करेगा यूजर की। कौन सी यूजर की? तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉग्ड इन यूजर। जो लॉग इन यूजर है ना, जो यूजर पहले से लॉग इन है, उस यूजर की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा टिल्ड साइन। ओके, क्लियर? समझ में आया गाइस? सो अगर मैं किसी भी पाथ पे रह के cd टिल्ड करूंगा तो क्या होगा? यस, एनीवन? सर लॉगिन यूजर सर के वही होम पे है ना? डायरेक्टरी। हाँ, अभी हम वहीं पे ही है। तो यहाँ पे अगर टिल्ड साइन दिख रहा है तो इट मीन्स व्हाट, कि अभी हम यूजर की होम डायरेक्टरी में है। ओके, एंड यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पाथ दिखाएगा। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. ओके, बट अच्छा, सीडी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके एक मिनट, वापस हम एटीसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी टिल्ड, तो अच्छा टिल्ड लिख के एंटर अगर करूंगा तो इसका कोई मीनिंग है? पहली चीज, ये टिल्ड इवन लिखने का कोई मीनिंग भी है? यस सर, हम वहाँ एंटर करते हैं हम सर, होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, स्लैश रूट पे आ अच्छा, जाएंगे ना सर। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो भी तो वही काम होगा ना, राइट? सिर्फ सर सीडी लिखूंगा इसमें तो क्या होगा? सर सीडी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो यस, यस गो हेड अमित, बताओ बताओ। यस, धनराज, नीर, हर्षिल, रतन। हेलो सर। यस यस, सर सीडी बिल्ट मेरे ख्याल से जो हम लोग ये लास्ट जो प्रीवियस डायरेक्टरी में थे, जैसे कि होम डायरेक्टरी में थे रूट के, उसमें आएगा। अगर वापिस से वो करेगी तो हम लोग स्लैश etc स्लैश ssh होएगा। नहीं समझ में नहीं है, क्या बोला आपने? फिर से सर बोलो। एक बार सीडी एंटर कर दो। हम्म अब वापिस से सीडी स्पेस टिल्ट साइन करेंगे तो हम्म ऊपर की जो डायरेक्टरी थी, जो स्लैश etc स्लैश ssh थी, वहां पे हम्म, डायरेक्ट हो जाएगी वो। नहीं, क्योंकि ये साइन का मीनिंग क्या है? पहली चीज, whenever you define this tilde sign, what does this mean? टिल्ड साइन कहीं पे भी दिखता है ना, तो समझ जाने का कि यूजर की होम डायरेक्टरी का पाथ बोल रहा है। ओके, कहीं पे भी लिनक्स में आप कहीं पे भी कभी भी ये साइन देखो ना, सीडी टिल्ड लिखा हुआ हो, तो उसका मीनिंग क्या होगा? कि ये बता रहा है कि जिस यूजर से आप लॉगिन हो, उस यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है। ओके, बट इसका अच्छा ये लिखने का कोई मीनिंग है ऐसा? मतलब मैं वापस cd स्लैश etc ssh करता हूँ और cd टिल्ड साइन लिखता हूँ अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा टिल्ड साइन लिखने का कोई मीनिंग है? और यहाँ से सिर्फ टिल्ड साइन लिख के एंटर करने का कोई मीनिंग है? बिकॉज वो काम तो यहाँ से भी हो जाएगा, तो टिल्ड साइन लिखने की क्या नीड पड़ी है? यस, कोई बताएगा कुछ? समझ में आया गैस कि अगर मैं सिंपली cd कर रहा हूँ तो भी काम हो जा रहा है ना? यस, नो? नो सर, मुझे नहीं पता। ओके, सो अगर हम cd सिर्फ cd लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? होम डायरेक्टरी पे जा रहा है, राइट? तो cd वापस इधर आ जाते हैं, ssh पे आ जाते हैं, और cd टिल्ड साइन लिखूंगा तो इसका कोई मीनिंग है? ये एंटर करूं या फिर सिर्फ cd एंटर करूं, दोनों का मीनिंग सेम हुआ?
हाँ सर। राइट? समझ में आया? ओके, सो बेसिकली आप किसी भी पाथ पे रह के सीडी सीडी सिर्फ सीडी करोगे तो वो तो आपको होम डायरेक्टरी के पाथ पे लेके जाएगा। बट व्हेन यू डिफाइन टिल्ड साइन, और तो इसका मतलब ये है कि आप ना यहाँ से ही डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर के किसी फोल्डर में जाना चाहते हो तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो आपको ये तो पता है ना कि स्लैश सॉरी टिल्ड साइन रिप्रेजेंट दी होम डायरेक्टरी। ओके, तो जब भी आपने स्लैश यहाँ पे लिखा ना ये टिल्ड साइन, तो टिल्ड साइन करके आप आगे अंदर के जो फोल्डर्स है ना आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर के जो फोल्डर्स हैं आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हो। So that is the purpose of writing slash. I mean that is the purpose of writing tilde sign. तो टिल्ड साइन आपने लिख लिया तो इट मीन्स कि हमने उसको होम डायरेक्टरी का पूरा पाथ दे दिया। ओके, सो टिल्ड साइन का मीनिंग ही यही है कि आपने उसको पूरा होम डायरेक्टरी का पाथ डिफाइन कर दिया। सो टिल्ड साइन जैसे ही आपने लिखा ना तो इट विल अंडरस्टैंड कि ओके मुझे होम डायरेक्टरी के पाथ में जाना है। अब आगे आगे क्या, आगे अगर आपको मान लो कि आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर कोई डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है या किसी भी नाम का फोल्डर है, तो आपको अगर वो डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देने की नीड नहीं है, आपको होम डायरेक्टरी का पाथ याद करने की नीड नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हो होम डायरेक्टरी के अंदर के किसी फोल्डर में। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज टिल्ड साइन। समझ में आया? सीडी कमांड के साथ अगर आपको टिल्ड साइन यूज करना है तो इट हैज दिस मीनिंग। अगर सिर्फ टिल्ड साइन लिखा है तो इट मीन्स कि वी आर रेफरिंग इट टू द होम डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन यूजर। और अभी हम कौन से यूजर से लॉगिन है? रूट यूजर से लॉगिन है, तो वो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में जाएगा। क्लियर? समझ में Yes. आया guys? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा एक और पैटर्न भी लिखा रहता है सीडी, उसके बाद आता है यूजर नेम। तो टिल साइन एंड यूजर नेम, तो ये इसका मीनिंग क्या है? ये कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखो बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि जैसे अभी मैंने लिखा था टिल्ड साइन एंड यूजर नेम। टिल्ड साइन रिप्रेजेंट होम डायरेक्टरी, यूजर नेम लिखोगे तो उस पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी में स्विच करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टिल्ड बीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं वो आपके जो विषम नाम का जो यूजर होगा ना उसके होम डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। यस, लेकिन इससे पहले टिल्ड और बीशम के बीच में कोई आपने एडिशनल स्लैश नहीं लगाना है। अगर ये लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? अच्छा पहले इसका मीनिंग समझाओ सिर्फ। सर इसमें रूट के होम डायरेक्टरी में जो विषम डायरेक्टरी होगा उसमें जाएगा। राइट, एनीवन एल्स? हर्षल? I'm not sure, sir. ओके, सो बी श्योर, बताओ ना क्या श्योर नहीं हो? अच्छा व्हाट इज, ओके व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या होगा? वो हमें ईशम नाम के फोल्डर में ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सर एरर आएगी सर एंटर करते हैं इसमें तो। ओके एरर आएगी, क्यों ऐसी एरर आएगी? सर क्योंकि ये स्लैश में नहीं है ना सर। ओके, स्लैश में नहीं है, बट स्लैश तो मैंने लिखा ही नहीं है ना। देखो मैंने स्लैश लिखा ही नहीं है, आगे टिल्ड साइन लगाया हुआ है ना सर
टिल के बाद हेलो स्लैश लगाया ना, इसलिए एरर आएगी ना सर। ओके, यस, कोई और बताएगा? धनराज, मीर? यस सर। यहाँ पे टिल्ड का मतलब होता है कि जो भी करंट यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी राइट। लॉगिन है। और स्लैश का मतलब होता है कि उस होम डायरेक्टरी के अंदर भीषम नाम की डायरेक्टरी और फाइल रहेगी। अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो हम जाएंगे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो ऐसा बोलेगा कि नॉट ऑफ डायरेक्टरी। ओके, सो पहली चीज यहाँ पे सीडी लिखा है तो इट विल लुक फॉर कि ये फोल्डर है। ठीक है, समझ गए कि सीडी कमांड ना ऑलवेज फोल्डर पे, डायरेक्टरी पे ही वर्क करता है। पहली चीज कि जब भी अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं इसको कमांड को ऐसा बोल रहा हूँ कि होम डायरेक्टरी मतलब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में भीषम नाम के फोल्डर में जाओ। ओके, समझ में आया? कमांड को मैंने क्या बोला है कि टिल्ड साइन लिखा है, टिल्ड साइन का मतलब कि होम डायरेक्टरी। अच्छा, बट ये होम डायरेक्टरी किस यूजर की? सिर्फ टिल्ड लिखा है तो होम डायरेक्टरी किस यूजर की? तो होम डायरेक्टरी है रूट यूजर की, क्योंकि रूट यूजर से लॉग इन हो ना, तो टिल्ड साइन लिखूंगा तो क्या अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है। और उसके बाद स्लैश लिखा है, उसके बाद स्लैश लिखा है तो मतलब डायरेक्टरी सेपरेटर लगाया है। और मैंने उसको ऐसा बोला है कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में भीषम नाम के फोल्डर में जाओ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो देखो उसने यहाँ पे ना कमांड में देखो पाथ क्या एक्सेस किया, कमांड में पाथ क्या एक्सेस किया, cd/root/bsham। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने कहीं ऐसा तो नहीं लिखा था ना, स्लैश स्लैश रूट तो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं था। लेकिन उसने ऑटोमेटिकली क्या अंडरस्टैंड किया, टिल्ड साइन का मतलब क्या होता है, यूजर की होम डायरेक्टरी। ओके, समझ में आया गाइस? समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ओके ओके, हर्षल समझ में आया? हाँ यस सर। ओके, so cd, when I type cd slash, or sorry, cd tilde, it means home directory of that particular user। लेकिन ये टिल्ड साइन के बाद ना मैंने कोई स्पेस या कुछ भी नहीं लगाया, ना ही स्लैश लगाया है, और डायरेक्टली यूजर नेम लिखा है टिल्ड बीशम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीशम यूजर की होम डायरेक्टरी में जाओ, या बीशम यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप नाम के फोल्डर पे जाओ। नाउ ये अगर ऐसा लिखा है तो इट मीन्स मैंने इस कमांड को ऐसा बोला है कि टिल्ड बीशम मीन्स कि बीशम यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाओ। ओके, एंड उस वहां पे जो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है ना उसको एक्सेस करो। तो देखो हो गया एक्सेस। और pwd अगर आप करोगे तो आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ दिख रहा है। समझ में आया गाइस? Yes, sir. ओके, यस सर। सो टिल्ड साइन के बाद अगर कोई भी स्पेस या कुछ भी नहीं है और नाम लिखा हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट के वो इस पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी को रेफर करने को बोल रहा है। ओके, भीषम यूजर की होम डायरेक्टरी में डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में स्विच करने को बोला। तो अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा था तो आपको स्विच कर देगा, अगर नहीं करता तो आपको ऐसा एरर आता, नो स्विच फाइल और डायरेक्टली। ओके, सो सीडी कमांड के साथ जब भी कोई आगे नाम लिखोगे तो वो उसको क्या अंडरस्टैंड करेगा कि आप फोल्डर के लिए सर्च कर रहे हो, क्योंकि सीडी कमांड ना सिर्फ और सिर्फ फोल्डर के लिए चलता है। फोल्डर बोलूं या डायरेक्टरी बोलूं तो दीज आर टू इंटरचेंजेबल वर्ड्स, तो उसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्टरी बोलूं या फोल्डर बोलूं तो वो एक ही बात है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, Okay. sir. ओके, अगर मैं cd स्पेस हाइफन लिखता हूँ, हाइफन रिप्रेजेंट, हाइफन का मतलब है कि जब भी cd हाइफन करूंगा, अच्छा, तो ये क्या करेगा, मुझे जब मैंने ये पाथ स्विच किया था तो इससे पहले जिस प्रीवियस पाथ पे था ना वो पाथ पे मुझे लेके जाएगा। मतलब जब ये कमांड रन किया था,
यहाँ पे, तो इससे पहले जो पाथ था ना वो पाथ पे मुझे लेके जाएगा। अभी देखो यहाँ से मैंने फोल्डर स्विच किया था ना, तो जब ये वाला कमांड रन किया था तब मैं कौन से फोल्डर में था, डाउनलोड्स फोल्डर में। तो क्या करेगा, प्रीवियस फोल्डर, मतलब जब भी आपने प्रीवियस लास्ट पाथ जब एक्सेस किया था तो आपको उस पाथ पे लेके जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ /cd etc/ssh। तो अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, यस अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ मैं, /etc/ssh। तो अभी मैं ssh नाम की डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं cd हाइफन यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, यस cd हाइफन करूंगा तो क्या होगा, यस एनीवन। तो ये क्या करेगा, इस कमांड इस फोल्डर में आने से पहले जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी था, जो इस कमांड में ये फोल्डर में आने से पहले जो प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी थी, उस प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे मुझे लेके जाएगा। ओके, अब वापस अगर cd हाइफन करूंगा तो क्या होगा, यस कोई बताएगा। सर वापस SSH फोल्डर में आ जाएगा। वापस क्या होगा, ssh फोल्डर में आ जाएगा। तो cd हाइफन क्या करेगा, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे आपको लेके जाएगा। ये प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि जिस फोल्डर में अभी आप हो, इससे पहले जब आपने ये cd कमांड रन किया था तो जिस प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में थे ना, उस प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में वापस आपको लेके जाएगा। इज इट समझ में आया गाइस? Yes, sir. यस गर्ल्स समझ में आया? श्रुति और कौन है, प्राची, किंजल, यस गाइस समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके कूल। सो लेट्स नाउ, अच्छा वापस अब देखो cd हाइफन किया तो क्या किया, जिस पाथ पे प्रीवियस, इस पाथ को एक्सेस करने से पहले जो प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी थी उसमें आ गया। सो ये कमांड ना, ये cd हाइफन cd स्पेस हाइफन, ये कब काम में आता है, जब आप सिर्फ दो फोल्डर के बीच में काम करना चाहते हो ना, तब ये आपको हेल्पफुल रहता है। cd हाइफन करूँ तो वापस डाउनलोड्स में आ गया, ये फिर किया तो वापस उसी पाथ पे चला गया। या फिर आपने गलती से कोई बहुत बड़ा पाथ था, मतलब 10 डायरेक्टरी अंदर का कोई पाथ था, तो आपने गलती से यहाँ पे ऐसा लिख दिया, cd लिख दिया। अच्छा सिंपली cd लिखूंगा तो क्या होगा, सर होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे करंट यूजर के। ओके ओके क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है ना अब? Yes, sir. ओके, तो मान लो कि गलती से ना मैंने cd कमांड रन कर दिया, तो अब मुझे ना वापस इससे वापस क्या करना है, इससे पहले का जो पाथ था ना, प्रीवियस पाथ था, उस पे ही जाना है। तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। लेकिन अब अगर cd हाइफन करूंगा तो क्या होगा, यूजर के होम डायरेक्टरी में लेके जाएगा। ओके क्लियर। वो क्यों, क्योंकि जब ये पाथ से जो प्रीवियस पाथ था ना, वो था रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। सो यहाँ पे जब भी टिल्ड साइन दिखे तो समझ जाने का, कहीं पे भी टिल्ड साइन दिखे तो समझ जाने का कि ये रूट यूजर की, सॉरी ये यूजर की होम डायरेक्टरी की बात कर रहा है। ओके क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो आई मीन cd कमांड के लिए इतना ही है। अभी आप लोग पहले ये सारी चीजों का प्रैक्टिस कर लो। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, सो 15 मिनट्स के बाद वापस रिज्यूम करते हैं। अभी 9:08 हुए हैं, सो आफ्टर 15 मिनट्स 8 9
23 को हम वापस रिज्यूम करते हैं. Every one of you, please try it these options with your hand. उसको अंडरस्टैंड करो, उसको अपनी लॉजिक के हिसाब से उसको एक्सेस करने का ट्राई करो एंड देखो कि क्या हो रहा है. ओके, 15 minutes for you for practice and let me know. We'll then start back. Hello, sir. Guys, किसी को कोई डाउट हो तो वो प्लीज पूछ सकता है एंड आई एम हियर इटसेल्फ. हेलो सर. यस. सर मेन कमांड इस सीडी के लिए नहीं काम करता. क्या? मेन सीडी CD लिखते हैं ना हम, तो वो काम नहीं करता. सिर्फ सीडी लिखते हो काम नहीं करता है ऐसा? नो नो सर, मेन मेन MAN स्पेस अच्छा, CD. हाँ, सीडी कमांड का मैनुअल ना वो एक्सेस करने का मैं आप लोग को मेथड बताता हूँ, बिकॉज सीडी मैन सीडी करोगे तो वो उससे नहीं चलता है.
यस गाइस, हो रहा है आप लोग का? Yes. Yes, sir.
Okay, guys. So let's start back. किसी को कोई अभी तक डाउट या क्वेश्चन? नो सर। Okay, so फोल्डर स्विच करना हमने देख लिया एंड वी हैव आल्सो सीन कि हम फाइल्स कैसे लिस्ट कर सकते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्ट कैसे कर सकते हैं. तो लेट्स नाउ सी कि हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं. तो अभी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई फाइल है, जैसे यहाँ कोई फाइल है ए है या anaconda-ks.cfg है, तो ये फाइल अगर है तो इसको हम कमांड लाइन पे रीड कैसे कर सकते हैं. तो देयर आर 3 कमांड्स फॉर रीडिंग अ फाइल. ओके, देयर आर 3 कमांड्स बट वी विल ओनली डिस्कस 2. ओके, तीनों डिस्कस कर लेंगे, बट द मोर फ्रीक्वेंट यूज्ड आर 2. ओके, वन इज कैट. कैट कमांड क्या करता है कि आपको ना फाइल को रीड करके बताता है. सो ये कैट कमांड क्या करेगा, आपको फाइल का जो आउटपुट है ना वो पूरा वन शॉट में पूरा स्क्रीन पे डंप कर देगा, प्रिंट कर देगा, पूरा आउटपुट वन गो में प्रिंट कर देगा. तो जनरली क्या होता है कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, जो लिनक्स टर्मिनल या कोई भी आप ऐसा दूसरा कुछ टर्मिनल यूज करते हो, तो उसमें ना आप यू डोंट हैव ऑप्शन टू गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन, या आप उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते हो. सो इन दैट केस क्या होगा कि आपको ना सिर्फ आउटपुट उतना ही दिखेगा जो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से, जो आपको जितना स्क्रीन दिखेगा बस वहीं पे ही आपको जो आउटपुट दिख रहा है उतना ही आपको पेज दिखेगा. बट इट विल नॉट शो यू द कंप्लीट कंटेंट. कि मतलब वो अगर एक पेज या आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन से वो बाहर जाता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी दोज कंटेंट्स. तो कैट कमांड क्या करता है, पूरा आउटपुट वन गो में प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे. ओके, तो अगर वो एक पेज से कम का है तो देन इट्स फाइन कि हम वो पूरा यूज कर सकते हैं. लेकिन वो अगर एक पेज मतलब स्क्रीन की रेजोल्यूशन से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है तो यू वांट बी एबल टू सी दैट कंप्लीट फाइल ऑन द स्क्रीन. ओके, क्लियर, समझ में आया गाइस? तो कैट कमांड क्या करता है, आपको पूरा आउटपुट दिखा देता है. फॉर एग्जांपल कैट ए करता हूं तो ए वाली फाइल के अंदर देखो, ए वाली फाइल के अंदर क्या है, कंटेंट कितना है, बस इतना ही कंटेंट है. सो आई एम एबल टू सी इट. लेकिन कैट एनाकोंडा डॉट के एस anaconda-ks.cfg अगर कर रहा हूं तो देखो ये आउटपुट पूरा आउटपुट, इस पूरे फाइल का आउटपुट वन गो में इसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे. तो जो स्क्रीन पे ना हमें उतना ही दिखेगा जितना हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. ओके, बट कैट कमांड क्या करेगा, पूरा आउटपुट आपको दिखा देगा. बट इफ यू वांट कि नहीं पूरा आउटपुट भले ही दिखाओ लेकिन इंटरेक्टिव मोड में हो या मैं पेज वाइज उसको देख सकूं, तो उसके लिए लेस कमांड यूज होता है. लेस एंड देन anaconda-ks.cfg कमांड एक्सेस करोगे तो देखो ये ना फर्स्ट लाइन से आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा है. आप इसको डाउन एरो की से नेविगेशन की से आप वन बाय वन एक एक लेटर मतलब एक एक लाइन आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो जैसे ही. और ये ना ये लेस में क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में रहता है. इंटरेक्टिव मोड मतलब कि आप इसको नेविगेट कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको ऐसे आप जा सकते हो. और आपको ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, अगर आप एक से ज्यादा लाइन में ये आउटपुट है तो इफ यू कीप ऑन प्रेसिंग डाउन एरो की तो वो आपको लाइन बाय लाइन दिखाता जाएगा. एंड जैसे ही वो लास्ट लाइन तक आ जाएगा तो यहाँ पे आपको एंड दिखेगा. एंड दिख रहा है तो इट मींस नाउ दिस फाइल हैज एंडेड. इसके आगे इसका और कुछ भी नहीं है. क्लियर, समझ में आया गाइस? गाइस समझ में आया ये चीज? यस Yes, सर. sir. यस सर. ओके, सो लेस कमांड क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में आपको दिखाता है. सो अब लेस कमांड ना इंटरेक्टिव मोड में होता है, तो इंटरेक्टिव मोड में से बाहर निकलना हो तो सिंपली क्यू प्रेस करना है. ओके,
तो ये फाइल को रीड करेगा इन अ इंटरेक्टिव मोड। अच्छा, मोर कमांड ना, लेस मोर एंड कैट, कैट कमांड क्या करता है, पूरा आउटपुट 1 गो में प्रिंट करेगा, लेस कमांड इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट करेगा। मोड से क्या होगा, आपको ना पेज बाय पेज दिखाएगा। अब ये इंटरेक्टिव मोड में नहीं रहता है, देखो अब मैं अप डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा है, ओके। बट मोर से क्या होता है, वन आपको पेज बाय पेज दिखाएगा। आप जैसे ही पेज प्रेस करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज का कंटेंट दिखाएगा। वैसे फिर आपने नेक्स्ट स्पेस बार या कोई भी की प्रेस करोगे तो वो आपको लास्ट पेज दिखा रहा है। मतलब इसके अंदर 3 पेजेस ही थे तो वो आपको तीनों पेजेस दिखा रहा है। मोर कमांड क्या करता है, आपको पेज बाय पेज दिखाता है, ओके। लेस कमांड क्या होता है, वो इंटरेक्टिव मोड में होता है। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये है कि आप फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, ओके। एंड कैट जो है वो 1 गो में आउटपुट प्रिंट करता है। तो जहां जहां पे जैसी जैसी नीड होती है ना, वैसे ही ये कमांड यूज कर, करते हैं लोग, कैट, लेस एंड मोर। क्लियर गाइस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, कूल। सो ये थे इसके ऑप्शंस। अच्छा, अब अगर अच्छा अब ना थोड़े कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं हम। शॉर्टकट्स कैसे, कि देखो यहाँ पे ना मैं अपने कीबोर्ड पे अगर कंट्रोल एल प्रेस करूंगा ना तो ये क्या करेगा, स्क्रीन क्लियर कर देगा। स्क्रीन क्लियर करने स्क्रीन सिर्फ क्लियर करेगा यहाँ से। या तो देखो स्क्रीन क्लियर करना हो ना तो 2 ऑप्शन है, वन इज कि इफ आई राइट क्लियर कमांड तो ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। द अदर ऑप्शन इज and the other option is if I press कंट्रोल एल तो ये क्या करेगा, स्क्रीन से आउटपुट क्लियर कर देगा, ओके। अच्छा, आपने कोई भी प्रीवियस कमांड अगर एक्सेस किए हैं तो अगर आप अप एरो की प्रेस करते जाओगे ना तो आपने जो जो प्रीवियस कमांड एक्सेस किए हैं वो आपको सारे यहाँ से दिखाएगा, ओके। अप एरो की से क्या करेगा, आपने जितने भी कमांड रन किए हैं वो सारे कमांड्स आपको दिखाएगा। डाउन एरो की से जो लास्ट, मतलब अप एरो की से आपने ऊपर की कमांड्स में आ गए, डाउन एरो की से आप और नीचे के कमांड्स देख सकते हो। क्लियर, समझ में आया? और Yes, sir. हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी आपने कीवर्ड लिखना है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एलएस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी से स्टार्ट होने वाले कितने कैरेक्टर्स हैं, लेटर फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, 3 दिख रहे हैं, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे डाउनलोड्स में जाना है तो मैं डी और टैब प्रेस करूंगा, 2 बार टैब प्रेस करूंगा। टैब बेसिकली आपको लिनक्स में ना टैब कमांड का बहुत ज्यादा, टैब बटन का बहुत ज्यादा यूज करना है। टैब बटन क्या करता है, ऑटो कंप्लीट करता है। अगर उसको कुछ कैरेक्टर्स मिले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अगर मैचिंग और कोई नहीं है तो वो डायरेक्टली उसको कंप्लीट कर देगा। मैं DOW लिखा और टैब प्रेस किया तो देखो उसने ऑटो कंप्लीट किया। लेकिन अगर सिर्फ DO करता तो ऑटो कंप्लीट नहीं किया। क्यों ऑटो कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज डी के बाद डाउनलोड्स भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिखूंगा और टैब दबाऊंगा तो डॉक्यूमेंट्स में मूव हो जाएगा, या फिर डब्ल्यू लिखूंगा तो एक टैब दबाने से वो ऑटो कंप्लीट करता है और 2 बार टैब दबाने से वो आपको सजेशंस देता है, आपको लिस्टिंग करेगा कि DO से स्टार्ट होने वाले और कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो टैब का आपको ना बहुत ज्यादा यूज करना है। टैब इसलिए यूज करना है कि आपका कभी भी आपको पूरा कमांड टाइप नहीं करना है, या पूरा जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको ये पूरा टाइप करने की भी नहीं। जैसे ये आपको तो इसमें क्या होगा कि आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी वजह से आपको जो अननेसेसरी एरर्स आते हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वाले, ऐसा
तो वो आपको नहीं आएंगे। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कभी भी आपको पूरा टाइप करने की नीड नहीं है। तो यू ऑलवेज यूज टैब बटन टू ऑटो कंप्लीट। ओके, समझ में आया गाइस? Yes, sir. ओके, उसके अलावा अगर आपने जो भी प्रीवियस कमांड्स आपने रन किए हैं, तो यू कैन सी ऑल दोज कमांड्स इन हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री को एक्सेस करने के ना दो मेथड होते हैं। वन इज कि आप प्रीवियस जो भी कमांड आपने एक्सेस किया ना, तो वो आप अप एरो की प्रेस करते जाओगे तो वो आपको दिखाएगा। ठीक है। अनदर वे इज कि आप ना हिस्ट्री कमांड एंटर करोगे ना, तो वहां पे भी आपको ये सारे कमांड्स दिखाएगा। देखो, दिखा रहा है आपको पूरा हिस्ट्री। राइट? क्लियर? समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो अब मुझे मान लो कि हिस्ट्री में से ये कमांड नंबर 52 रन करना है। ये हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री में जो भी कमांड है ना, वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो ये हिस्ट्री में जो कमांड है ना, 52 नंबर वाला जो कमांड है, वो क्या है? कैट एनाकोंडा, या फिर 55 वाला मुझे कमांड रन करना है। तो हिस्ट्री में से अगर कोई भी कमांड आपको डायरेक्टली एक्सेस करना हो, तो आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, एंड जो हिस्ट्री में कमांड नंबर है, वो नंबर आपको लिखना है। कौन सा कमांड नंबर एक्सेस करना है? 55 एक्सेस करना है, तो एक्सक्लेमेशन 55 करूंगा तो डायरेक्टली वही कमांड रन हो जाएगा। तो देखो, ये 55 पे कौन सा वाला कमांड था? लेस एनाकोंडा हाइफन cfg था ना। तो देखो, इंटरेक्टिव मोड में हम आ गए। ओके, क्लियर? समझ में आया गाइस? तो हिस्ट्री में से कोई भी कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना हो, तो आपको पूरा कमांड लिखने की नीड नहीं है। सिंपली क्या लिखना है? एक्सक्लेमेशन एंड जो कमांड है, उस कमांड का नंबर लिखना है कि वो कमांड कौन से नंबर पे आपने रन किया है। ओके, यस, एनीवन, Yes, एनी sir. डाउट? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. ओके, एक और मेथड होता है, वो ये होता है कि अगर आपको हिस्ट्री के अंदर आपने प्रीवियसली कोई कमांड रन की है, आपको हिस्ट्री के अंदर कुछ सर्च करना है, आपने कुछ कीवर्ड्स लिख के आपको वो कमांड सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका टर्मिनल जो आपका शेल है, उस शेल पे आके आपको क्या करना है? कंट्रोल आर प्रेस करना है। तो देखो, यहाँ पे ना ऐसा आ रहा है, रिवर्स सर्च। तो अब आप यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स लिखोगे ना, तो उससे जो मैचिंग कमांड्स आपने प्रीवियसली रन किए थे, वो आपको दिखाता जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि मैं सिर्फ कैट लिखा, तो ये कैट से रिलेटेड उसको जो पहला कमांड नजर आया, वो आपको दिखा। और यही कमांड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपली क्या करना है? एंटर कर देना है। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आपको कुछ सर्च करना है, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल आर प्रेस करना है, एंड देन यू कैन सर्च इन द हिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिस्ट्री लिखता हूँ, तो देखो HIS लिखा, तो हिस्ट्री आ गया। तो ये अगर आपको इस तरीके से एक्सेस करना है, तो इफ यू आपको क्या करेगा? सर्च करके हिस्ट्री में सर्च करेगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वाला जो स्टार्टिंग के जो कीवर्ड्स हैं, उसका वो कमांड सर्च करेगा। तो जैसे ही आपको कमांड मिल जाता है, तो यू कैन सिंपली एंटर दैट कमांड। ओके, क्लियर गाइस? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स डिस्कस टू मोर कमांड्स। उसके बाद हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। तो टू मोर कमांड्स आर लाइक, अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कमांड यूज होता है टच। टच कमांड आप अगर यूज करोगे, तो वो क्या करेगा? ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा। टच कमांड के बाद आपको क्या देना है? फाइल का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा file1। ओके, तो ये क्या करेगा?
फाइल क्रिएट करेगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज ये फाइल कहाँ पे क्रिएट करेगा? स्लैश रूट में सर क्रिएट हो गया सर ये। तो ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी? यहाँ पे मैंने कोई पाथ नहीं दिया है, सिंपली नाम लिखा है। तो जो करंट डायरेक्टरी है मेरी, उसी करंट डायरेक्टरी में ये फाइल क्रिएट होगी। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. यस सर। ओके, टच फाइल 1 करूंगा तो अभी मैं कौन सी करंट डायरेक्टरी कौन सी दिखा रहा है? टिल्ड साइन दिखा रहा है। तो इट मींस व्हाट? अभी मैं कहाँ पे हूँ? स्लैश रूट में हो ना सर अभी तक। स्लैश रूट में हूँ, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ। और टच फाइल 1 करूंगा तो ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी? रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ओके, सो टच फाइल 1 किया और ls किया तो देखो ये फाइल 1 आ गई। और ये क्या है? ब्लैंक फाइल है। तो ls-l करेंगे तो देखो 0 KB की फाइल आपको दिखाएगा, 0 बाइट्स की फाइल दिखाएगा। ओके, क्लियर? तो देखो दिस इज फाइल एंड दिस इज ऑफ साइज 0 बाइट्स। ओके, तो टच कमांड से अगर आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो आप स्पेस देके क्रिएट कर सकते हो। फाइल 1, फाइल 2, या फिर नाम दिया हमने। ओके, फाइल 1 तो ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल लिनक्स, फिर और AWS। अच्छा, आप जो भी नाम दोगे ना वो ऑलवेज केस सेंसिटिव रहता है। ठीक है, अभी मैंने फाइल 1 कैसे लिखा था? उसका f स्मॉल था। अब अगर f कैपिटल करके लिखूंगा ना तो दिस विल बी अ न्यू फाइल, डिफरेंट फाइल। अगर मैंने यहाँ पे लिनक्स लिखा है तो दिस लिनक्स वुड बी अ डिफरेंट फाइल एंड दिस लिनक्स वुड बी अ डिफरेंट फाइल। ओके, तो देखो दिख रहा है? सो टच कमांड से आप मल्टीपल फाइल्स स्पेस देके क्रिएट कर सकते हो। तो स्पेस देके अगर आप फाइल क्रिएट करोगे तो क्या होगा? ये फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. सो No, टच sir. कमांड, Clear. टच कमांड से सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है, मतलब एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं होगा, जस्ट फाइल क्रिएट होगी। ओके, सो लेट्स सर एम्प्टी सी। फाइल का यूज क्या होता है? क्या? एम्प्टी फाइल का यूज एज सच कुछ नहीं होता है, जस्ट कि फाइल क्रिएट करना रहता है। और ऑफ कोर्स एम्प्टी फाइल का कोई यूज नहीं होता है। तो उस फाइल को जस्ट आपने क्रिएट करना है, और अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है या कुछ उसके अंदर कंटेंट ऐड करना है तो आप दूसरे कोई कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर टूल यूज करके कर सकते हो। बट अगर आपको कोई बोलता है कि फाइल क्रिएट कर दो, ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है, तो यू शुड नो कि टच कमांड से ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है। ओके सर। ओके, ओके, सो नाउ अगर मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड यूज होता है mkdir। टच कमांड से ऑलवेज फाइल क्रिएट होगी और mkdir कमांड से फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, और अगेन फोल्डर जब आप नया क्रिएट करोगे तो वो ऑलवेज ब्लैंक ही रहेगा। ओके, समझ में आया? mkdir कमांड से क्या होगा? फोल्डर क्रिएट होगा, और टच कमांड से फाइल क्रिएट होता है। mkdir, अच्छा अगर मैं ये रूट यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ mkdir बीशम, तो ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? वन थिंग, यस हेतुई बताओ कि आप ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा? सर यूजर की होम डायरेक्टरी में, मींस यूजर की होम डायरेक्टरी। तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में कौन से नाम का फोल्डर एक्सेस होगा, क्रिएट होगा? बीशम नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। ओके, क्लियर? समझ में आया? देखो यहाँ पे बीशम नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट? अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि ये जो बीशम नाम का फोल्डर है वो कौन एक्सेस कर सकता है इसको? मतलब अभी मैं किसी दूसरे यूजर से अगर लॉग इन करूंगा तो ये बीशम यूजर का, ये बीशम
फोल्डर कोई दूसरा यूजर इसको रीड कर पाएगा, इवन यहाँ तक आ पाएगा, उसके अंदर सीडी कर पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा सर। क्यों क्यों नहीं कर सर पाएगा? रूट, सर उसके पास क्या रूट का एक्सेस होना चाहिए या रूट यूजर होना चाहिए, तो ही कर पाएगा। ओके, तो देखो, अच्छा मैं अगर बीशम यूजर के अंदर फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो वो क्या अमित यूजर एक्सेस कर पाएगा? नहीं 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 कर पाएगा सर। तो वन थिंग इज कि जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो ना, तो आपको ध्यान रखने का कि आपकी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, क्योंकि अगर आपने किसी यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट किया है तो वो दूसरा कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, समझ में आया गाइस जो मैं बात बोल रहा हूं? अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि अगर आपने किसी ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बीशम यूजर में लॉगिन करता हूँ। अच्छा फॉरगेट कि अभी मैं कैसे लॉगिन किया, दैट आई विल ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए अब अभी मैं कौन से यूजर में लॉगिन हूँ? सर विषम नाम के यूजर में आपको बीशम बोला था। यूजर में लॉगिन हूँ मैं, राइट? और अगर मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir बीशम या फिर सिंपली लिनक्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट हुआ है? पहली चीज, लिनक्स नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, लेकिन ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है? बीशम यूजर की सर होम विषम, डायरेक्टरी में। ओके, तो ये बीशम यूजर की जो होम डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर क्रिएट हुआ है वो कोई और यूजर एक्सेस कर पाएगा? लाइक तो इसको अमित यूजर को वो फोल्डर दिखेगा, ये फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा अमित यूजर? नहीं कर पाएगा सर। अमित यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये बीशम यूजर या ऐसा कोई फोल्डर, लिनक्स नाम का फोल्डर, आपको अगर किसी को एक्सेस देना है तो ऑलवेज क्रिएट दोज फोल्डर ऑन स्लैश, क्योंकि स्लैश पे अगर कोई भी फोल्डर क्रिएट होगा ना तो उसको सारे यूजर एक्सेस कर पाएंगे, एटलीस्ट रीड कर पाएंगे। भले राइट राइट कौन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो रिलेटेड रहता है परमिशन से, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फोल्डर क्रिएट कर रहा है कि जो लिनक्स के अंदर सारे यूजर एक्सेस कर पाए, तो अच्छा अमित यूजर जो है वो स्लैश स्लैश पे सब कुछ देख सकता है? यस नो? यस यस सर, प्लस पे देख अब सकेगा सर। तो यहाँ पे स्लैश पे जो है वो अमित को रीड के सारे राइट्स हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश पे अगर कोई फोल्डर क्रिएट करूंगा तो अमित उसको रीड कर पाएगा। अच्छा सिमिलरली बीशम यूजर को भी बीशम यूजर को भी स्लैश का एक्सेस तो होगा ही ना, यहाँ पे वो सारी चीजें रीड कर पाएगा? यस नो गाइस? Yes, sir. पृथ्वी, श्रुति, शबाना, Yes, sir. जेल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जब भी मैं यहाँ पे, तो ये जो स्लैश है ना उस पे सबको रीड के राइट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई फोल्डर मैंने किसी यूजर की होम डायरेक्टरी में एक्सेस क्रिएट किया है तो उसको कौन एक्सेस कर पाएगा? तो किसी यूजर के होम डायरेक्टरी में होगा तो खाली जिसके पास रूट एक्सेस होगा ना सर वही कर पाएगा ना। या रूट कर पाएगा या फिर वो पर्टिकुलर यूजर कर पाएगा, राइट? अब हाँ वो अगर मैंने कोई फोल्डर अमित के फोल्डर में क्रिएट किया है, अमित यूजर की होम डायरेक्टरी में किया है, तो अमित यूजर तो उसको एक्सेस कर ही पाएगा, और दूसरा कौन एक्सेस कर पाएगा? रूट यूजर। रूट यूजर के पास तो देखो फुल राइट्स हैं, तो इसलिए रूट यूजर को तो हम कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि रूट यूजर ना सब काम कर सकता है, तो रूट यूजर की हम बात नहीं करेंगे। जब भी मैं अगर ऐसा वो पूछता हूँ ना या ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आता है कि कौन एक्सेस कर पाएगा, तो कौन एक्सेस कर पाएगा मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर यूजर अदर देन अदर देन user. रूट सर। यस,
ओके so so whenever you want to create any folder which should be accessed by anyone, तो आपको क्या करना चाहिए, वो फोल्डर कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, स्लैश पे। तो mkdir स्लैश लिनक्स करूंगा तो ये कहाँ पे फोल्डर क्रिएट होगा, सर ये स्लैश में क्रिएट होगा ना? ओके सो व्हेन आई टाइप, अगर सिर्फ लिनक्स लिखूंगा तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा, स्लैश रूट में क्रिएट होगा। स्लैश रूट में, मतलब ये करंट डायरेक्टरी पे क्रिएट होगा। सो वेन एवर यू टाइप स्लैश बिफोर, तो ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन कर रहे हैं। ओके mkdir स्लैश लिनक्स, तो ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा, स्लैश पे क्रिएट होगा। एंड जब स्लैश पे क्रिएट होगा तो वो ये कौन एक्सेस कर सकता है, हर एक यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। राइट ओके सो mkdir स्लैश लिनक्स, तो अभी देखो अमित यूजर है ना, तो इसको भी यहाँ पे लिनक्स नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। ये बीशम यूजर है तो इसको भी लिनक्स नाम का फोल्डर दिख रहा है। लेकिन क्या बीशम यूजर रूट की डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, तो अगर मैं cd रूट करता हूँ तो जा पाएगा। तो क्या आया एरर, परमिशन डिनाइड। अमित यूजर को, अच्छा अमित यूजर होम डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, ये होम डायरेक्टरी में जाएगा। लेकिन ये बीशम यूजर की जो होम डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर भी हमने एक लिनक्स नाम का फोल्डर बनाया था, तो उसके अंदर जा पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीशम और यहाँ पे लिनक्स लिखता हूँ, अच्छा ये तो बीशम यूजर से ही एक्सेस कर रहा है ना, तो ये तो कर ही पाएगा। लेकिन अमित यूजर, अगर अमित यूजर से मैं अगर जाता हूँ स्लैश होम, तो देखो स्लैश होम में तो अमित यूजर जा सकता है क्योंकि वो स्लैश पे क्रिएटेड है। ओके तो यहाँ पे लिस्टिंग किया तो दिख भी रहा है, बट यहाँ पे ऐसा लिखा cd बीशम स्लैश लिनक्स, तो अमित को यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो अमित यहाँ पे ये फोल्डर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एक यूजर दूसरे यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके तो अगर आपको कोई ऐसा फोल्डर क्रिएट करना है कि जिसको सारे यूजर्स देख पाए, तो वो फोल्डर कहाँ पे क्रिएट करने का, स्लैश पे क्रिएट करने का। राइट सो mkdir। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक साथ ना, अभी मैंने क्या करना है, दो डायरेक्टरीज, मतलब एक साथ एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, AWS क्रिएट करनी है और उसके अंदर एक EC2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो अगर ये कमांड रन करूंगा तो हो जाएगा फोल्डर क्रिएट। सो जब भी आपको कोई ऐसी डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो जो जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, तो उसके मतलब आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसके सब फोल्डर के साथ, तो उसके लिए अगर मैं ये कमांड रन करूंगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज कि AWS नाम की डायरेक्टरी क्रिएटेड ही नहीं है, तो EC2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करने देगा आपको। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा करना है तो उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करते हैं -p। हाँ तो उससे क्या होगा कि ये डायरेक्टरी भी क्रिएट करेगा और उसके अंदर की भी सब डायरेक्टरी भी क्रिएट करेगा। ओके तो इसका मतलब -p ऑप्शन क्या करता है, वो ये करता है कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर दो, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको तो सिंपली इग्नोर मारेगा। ओके क्लियर, समझ में आया? तो mkdir -p से आप डायरेक्टरी एंड उसकी सब डायरेक्टरी सिंगल कमांड से सिंगल वन कमांड से आप उसको क्रिएट कर सकते हो।
अदरवाइज क्या करना पड़ता अगर ये -p ऑप्शन ना होता तो पहले हमें क्या करना पड़ता, AWS नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती और उसके बाद EC2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती। ओके गाइस, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, एनीवन, एनी डाउट? जेल, जानवी, शिवाना, किंजल, श्रुति, अमित, हर्ष, आदित्य, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? No, sir. Clear. ओके, क्लियर। कूल। हेलो सर। यस अमित, तो मैनुअल कमांड CD के लिए काम नहीं करेगा तो फिर उसके लिए दूसरा कमांड है? मैन कमांड जो है ना वो CD पे नहीं चलता है। आई विल लेट यू नो कि वो मैं CD का मैनुअल एक्सेस करने के लिए आई लेट यू नो कि उसको कैसे एक्सेस करना है। अभी के लिए ना आप गूगल करोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे ना मैनुअल CD मैनुअल, तो वो आपको वहां पे अभी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि मैनुअल CD कमांड का मैनुअल कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप जो है ना वो गूगल करोगे तो वो वहां पे आपको दिखाएगा। ओके, सो हेतवी आप अपडेट कर दीजिएगा शीट एंड अटेंडेंस भी अपडेट कर दीजिएगा। Yes, sir. So okay, so we will maybe अच्छा हेतवी, आप लोग का नेक्स्ट वीक का क्या है, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे? वैसे तो मैं जाला सर से डिस्कस कर लूंगा या विजय सर से, बट आप लोग के कोई नेक्स्ट वीक में कोई एग्जाम्स वगैरह हैं कि क्या है? Yes, sir. Exams है Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. आगे का शेड्यूल नहीं पता। ये 3 दिन तो एग्जाम है। वेडनेसडे को Oh. वाइवा है और ये 2 दिन एग्जाम। Okay, so I'm planning for coming to university and probably हम यहीं पे ही क्लास लेंगे। तो मैं जाला सर से पूछ लूंगा अगर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का कुछ सेट होता है तो नेक्स्ट वीक तीन दिन वहाँ पे क्लास रहेगा। So I'll let you know everyone. Okay, sir. Okay. Okay, otherwise जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो क्लास तो वैसे रहेगा, बट क्लास रहेगा इन केस ऑनलाइन नहीं रहा तो फिर ऑफलाइन नहीं रहा तो फिर ऑनलाइन ही करेंगे। Okay, sir. Thank you everyone. Bye.